Hello class, how are you? Here Shilpa Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next lesson from our grammar book, that is active and passive voice. Clear? If we talk about its means definition, and if we talk about what is active and what is passive, then you will see that active sentence is based on subject and the passive sentence is based on object. Clear? Now you can see. Now you can see here a transitive verb defined as a subject which has an object and it has two voices. The transitive verb, there are two types of verbs, transitive verbs and intransitive verb. एंड जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो जो डिफाइंड एज अ वर्ब, वो वर्ब की तरह जो डिफाइंड होता है उसमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक ऑब्जेक्ट होता है आपका क्या, वो मतलब टू ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और एक जो ऑब्जेक्ट है आपका, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हम फिलहाल एक कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जिसमें टू वॉइसेज होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. क्लियर? अब आप सेंटेंस है, वी हैव टू एग्जाम्पल हियर लाइक Shella purchased a car and a car was purchased by Shella. Here you will see that कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो Shella is the subject and she is doing the work and the work is of what? Of purchasing. What is the action here performed? The action of here performed of purchasing. Purchasing action perform हुआ है. What is the subject of the verb purchased? सब्जेक्ट क्या है जो परचेजिंग वर्क हुआ है उसका क्या है सब्जेक्ट? उसका सब्जेक्ट है Shella. And who performs the action of purchasing? That is again Shella. This is our first sentence. Okay. Now we will talk about the second, and that is what is the action performed? Purchasing. Action किस चीज का perform हुआ है? Purchasing action perform हुआ है. What is the subject of the verb was purchased? Here it is car. And does the subject a car perform the action of purchasing here? Purchasing. Okay. Then no, the subject a car does not perform the action of purchasing. The subject a car, okay, does not perform the action of purchasing. Car does not perform the action of purchasing. In fact, it receives the action of purchasing. And we know that it is a Shella who performs the action. Okay, in the sentence is said to be in the passive voice. The sentence in which Shella is doing the task directly, that is active voice, and the sentence where we can see that the action is not means directly done by Shella, that is what? Passive voice. In active voice you will see the subject is main, and in passive voice you will see the object is main. Clear? Now we will just take the next step, that is what? Let us revise the rules of conversion from active to passive voice. ओके जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, हम उसको यहाँ पर देखेंगे. लेट अस रिवाइज द रूल्स ऑफ कन्वर्जन. द प्रीपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर इंटरचेंजिंग. जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ओके, सब्जेक्ट के आपके और उसके, वो इंटरचेंज होते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. अब आप इसको समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में. ये हमारा सेंटेंस है, वेनिका रोट 3 letters. Clear? Here is our sentence. Clear? And that is what? Venika wrote 3 letters here, and that is active sentence. And Venika is what? Subject, and 3 letters here what? Object. Okay. While we change into it passive voice, then this 3 letters will become the subject. Okay. And this Venika will be here. Okay, and it becomes here object. Clear class? This is the basic thing. Okay. And as you know that in passive voice always third form of the verb is used. Always third form of the verb is used in passive voice. Clear? Now the active subject, आपको ये बात समझ में आ गई ना कि जब हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है हम इसके सब्जेक्ट को जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो बाकी के रूल्स होते हैं वो एक और एक बाकी के जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हुए भी आगे हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. द एक्टिव सब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट सेंटेंस. वेनिका हैज़ बिकम द passive object in the second sentence. I think things are clear which I have already explained कि वेनिका को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. यहाँ पे देखिए वेनिका यहाँ पे है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. 3 लेटर्स यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया. रोड पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने यहाँ पर वर लगा दिया, और राइट इसका रोड का हमने रिटर्न कर दिया, बिकॉज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड ऑलवेज दैट पैसिव मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. And the next step is personal pronoun. Personal pronoun also change in passive voice if the subject or the object in a sentence is in active voice is the pronoun. Okay, it changes its form as shown in the given table. You and it means these are remain unchanged in the passive forms. Now you will see the what does it want to say actually. Here you will see I knitted the scarf. Here you will see that it is what? It is our
pronoun. While we change it into passive voice, this will be changed. This I will be changed into me. Clear? We baked the cake, and this we will be changed into us, because these are on the place of subject and we are just changing it into passive. While we change into it passive voice, then we have to convert it in all means objective case. These are all here in subjective case. I, we, he, we, they, it, they are all subjective case. While we change it into passive voice, we have to just convert it into objective case, because we are just putting all these subject on the place of object. That is why it is very necessary. जब हम इसको सेंटेंस में ये सब्जेक्ट जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, तब हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए कन्वर्ट होगा क्योंकि जब हम एक्टिव से इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नाउ यू विल सी द नेक्स्ट स्टेप समटाइम्स. And okay, we'll talk about the example. He, she drew the portrait. The portrait was drawn by him, her. Okay, he, she drew the portrait. The portrait was drawn by him, her. He gave him a cricket bat, and he was given a cricket bat by us. He gave him a cricket bat. Okay, here we, sorry, we, it is not he, we will be changed into us here. Okay, they are planting more trees. They will be changed into them. And it chased the birds. It will be remain same, and they will be changed into them, as I have told you. Okay, and sometimes the object or the subject may be as long phrase instead. Okay, if it is a long phrase instead of a single phrase, by then, but when a sentence in the active voice is rewritten in the passive voice, the whole phrase changed its position. जो पूरा जो फ्रेज है ना, वो अपनी पोजीशन को पूरा कंप्लीटली चेंज कर लेता है. जैसे ऑल द पीपल ऑफ द विलेज वॉच द वेदर balloon. Okay, this is what active voice, and this is a complete phrase, a big phrase, all the people of the village. And then the weather balloon was watched by all the people of the village. It is passive voice, and this we just change it into object. Okay, and they will not be changed here. Sorry. Here is other example. You can see here, Rubina baked a lot of ginger and biscuit. This is active, and the passive is a lot of ginger and nut biscuit were baked by Rubina. This is passive voice. Okay. Now we will talk about the transitive verbs here. Now, if the transitive verb has two objects, one direct and the other indirect. I have just in the very starting I have told you that transitive verb, this is transitive verb and it has two objects, direct object and indirect object. Either of them becomes the subject of the passive voice. हम दोनों से ही passive voice बना सकते हैं. Okay, एक sentence है जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं. दो ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. हम दोनों ही में से किसी को भी चुन करके हमारे सेंटेंस को बना सकते हैं. द अदर रिमेन एज एन ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह पैसिव वॉइस में रह जाएगा. द ऑब्जेक्ट द कम्स आफ्टर द पैसिव वॉइस इज कॉल्ड द रिटेन्ड ऑब्जेक्ट. ओके, द ऑब्जेक्ट, और फिर जो उसके बाद आता है वो आपका रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है. क्या कहलाएगा? द ऑब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर द पैसिव वॉइस. ओके, माई आंट गेव मी बुक ऑन सॉन्ग बर्ड्स. तो यहाँ पर ये आपका अब एक्टिव सेंटेंस है. क्लियर? जब हम इसको अब पैसिव बनाएंगे, क्लियर, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले आप यहाँ पर इसके बारे में देखिए. मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अ बुक ऑन सॉन्ग बर्ड. ओके, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्लियर? ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन पैसिव वॉइस वी कैन राइट दिस सेंटेंस इन टू वेज. हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाइल वी चेंज transitive verbs, if there is transitive verb, it has two object, direct object and indirect object. While we change, we can just change it in two ways. Okay, और दोनों ही ways में हम इसको बना सकते हैं. दो object है तो हम दोनों ही object से इसको बना सकते हैं. जैसे I was given a book on song, okay, birds by my aunt. तो यहाँ पर मैंने me से बना दिया. आप देख सकते हैं यहाँ पर me से बन गया सेंटेंस. I, यहाँ जो आपका ये me है, इस me से हमने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया पैसिव का. फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर अगला सेंटेंस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस, इस एक सेंटेंस से हमने दो में कन्वर्ट कर दिया. तो दैट कैन बी मेड वेरी इजीली. ओके, दोनों हम जो है दोनों ऑब्जेक्ट से हमारे सेंटेंस को बना सकते हैं. अब उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन लगता है.
Sometimes the active verb is followed by a preposition. This preposition retained while changed the verb from active to passive. जैसे the mother is baking to neighbor, तो यहाँ पर जब ये एक्टिव सेंटेंस है, जब हम बाई इसमें लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर बाई लग जाएगा, प्रीपोजिशन लग जाएगा. द नेबर इज बीइंग टॉक्ड टू बाई माई मदर, ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है, वर्ब्स फॉलोड बाई प्रीपोजिशंस. ठीक है, जो वर्ब्स है जो कि प्रीपोजिशन से फॉलो हो रहे हैं. क्लियर? Now interrogative sentences. Now we will talk about the interrogative sentences. When we change an interrogative sentence into passive voice, we retain the interrogative form. जब हम जो है चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, तब क्या होता है, हम रिटेन कर लेते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म को. When the active sentence begins with auxiliary verbs like do, they, did and does, the passive sentence will begin with are, was, were. क्लियर? जब ये एक्सिलरी वर्ब आते हैं तब हमारे जो है ना ये वाले वर्ब्स लग जाते हैं, वॉज, वर. ठीक है ना? दिस द टेबल विल बी गिवन टू यू वेरी सून इन लाइव क्लास ऑल्सो. मीन्स व्हाट इज द वे ऑफ टू चेंज, दिस विल बी गिवन टू यू. डू द boys make paper kites, this is active sentence. Now while we change it into passive voice, here you can see the word do, this is what helping verb. While we change into passive, we will have to take the verbs is mr, like then paper kites, here it is plural word, according to that we have to take the helping verb are. पेपर काइट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लेंगे, तो आर पेपर काइट्स मेड बाय द बॉयज, दिस इज व्हाट पैसिव वॉइस. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज डिड कविता मेक द चॉकलेट केक. तो अब देखिए, डिड कविता मेक द चॉकलेट केक, ये आपका सेंटेंस है. क्लियर? तो डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये वर्ज वर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस चॉकलेट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ज लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्ज दिस चॉकलेट केक मेड बाय कविता, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया. तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं. When the active sentence begins with auxiliary verbs like okay, have, has and had, the passive sentence will begin with have, has, had been. जब हमारे सेंटेंस में have, has और had होता है तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें been और add हो जाता है. ठीक है, जैसे have you closed the window, तो आपका आंसर क्या बनेगा, has the door been closed by you. ठीक है ना, इसमें हम been और add कर देंगे, has the door been closed by you. हैव आपका हैज़ में कन्वर्ट हो गया, डोर आ गया आपका यहाँ पे, इसीलिए हैज़ में कन्वर्ट हुआ, बीन लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन अवर न्यू सब्जेक्ट. ओके, और न्यू जो सब्जेक्ट है हमारा वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया. इसी तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस यू कैन सी हियर, हैड शी कुक्ड द डिनर बिफोर यू रीच्ड होम. दिस इज अवर एक्टिव सेंटेंस. वाइल वी चेंज इट इनटू पैसिव, हैड द डिनर बीन कुक्ड बाय हर बिफोर यू रीच्ड होम. तो क्या, तो जो है डिनर उसके द्वारा घर पहुंचने के पहले मतलब बना दिया गया था. तो इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें हमारा बीन लग रहा है और हैड लग रहा है. क्लियर? हैड बीन से बन रहा है. आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर हियर ऑल्सो. व्हेन द एक्टिव सेंटेंस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, जब हमारा एक्टिव का सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, दीज आर क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड. तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, फिर उसके आगे का जो चेंज है वो हमारा जो भी हमने किया उसके अकॉर्डिंग होगा. जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, Why did you finish the assignment? This is our active sentence. जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो when was the assignment finished by you, तो when का when हो जाएगा, no change here. ठीक है, did आपको बताया था मैंने अभी कि did को हम was were में चेंज करेंगे, तो assignment सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर was लग गया. finished आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर by के बाद हमने you लगा दिया. फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, why is he not revising his lesson. नेक्स्ट सेंटेंस है, तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाई का वाई ही रहेगा, और जो इज है आपका वो आपका जो है चेंज हो जाएगा, वाई इज ही नॉट, तो इज एम आर प्लस बींग में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई आर हिज लेसन्स नॉट बींग, नॉट बींग के पहले लग जाएगा, रिवाइज्ड बाय हिम. क्लियर? नेक्स्ट है विच रूम डिड दे पेंट, तो क्या हो जाएगा इसमें, विच रूम वॉज पेंटेड. वॉज क्यों लग गया, क्योंकि डिड है. पेंटेड क्यों लग गया, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है. बाई आपको पता है कि जब हम दे को यहाँ पर चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो यहाँ पर बाई लगाएंगे, फिर हम इसको यहाँ पर अपने जो है नया ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है. फिर हाउ डिड यू मेक द करी, तो हाउ वॉज द करी मेड बाई यू. हाउ डिड यू मेक द करी, हाउ वॉज द करी मेड बाई यू. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन द एक्टिव सेंटेंस बिगिन्स विद who or whose, the passive sentence will begin with
बाय हुम और बाय हुज। जब हमारा एक्टिव सेंटेंस है वो शुरू होता है हु या हुज से, तो पैसिव सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, बाय हुम से या बाय हुज से। जैसे हु वॉन द ट्रॉफी, तो ये हमारा जब हम पैसिव बनाएंगे तो बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम। ठीक है, फिर हमारा जो वोन है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके लिए हम यहाँ पर वॉज वर लगाएंगे। तो वॉज वर में हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे, ट्रॉफी सिंगुलर है, क्लियर। तो बाय हुम वॉज द ट्रॉफी वॉन। फिर अगला है हुज ब्रदर इज हेल्पिंग यू, तो बाय हुज ब्रदर आर यू बीइंग हेल्प्ड, ये पैसिव वॉइस है, क्लियर हो गया। तो दीज आर द थिंग्स हियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन द एक्टिव सेंटेंस बिगिंस विद whom, द पैसिव सेंटेंस विल बिगिन विद who। जब हमारा एक्टिव है whom आर यू वेटिंग फॉर, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू। क्या हो जाएगा, हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। क्लियर क्लास? आई थिंक द थिंग्स, द रूल्स विच आई हैव taught to you today is all clear to you. If still you have any doubt, then we will discuss it in our live classes, okay? And you have to learn and read all the rules very carefully, okay? And you will be given your exercise. First of all, try to do it yourself, and then I'm just sending you, and just do it, okay class? Thank you, have a nice day.